First of all, we start with the name of Allah Almighty. My name is Tayyib. I am here to teach physics. I hope you all will find fit and sound. तो क्लास इस लेक्चर के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम क्लास 9 के फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आमतौर पर एज यूजुअल 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। वो कौन सा है? नंबर 1 इज फर्स्ट इज वर्नियर कैलिपर। बेसिकली आज हम इसके बेसिकली 5 कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे, और वो 5 कंटेंट्स, वन इज इंट्रोडक्शन एंड द अदर इज प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज यूजेस एंड द फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्लास इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग द नेक्स्ट वर्ड आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। बेसिकली वर्नियर कैलिपर इज अ मिक्सचर और combination of two words. The one is vernier and the other is caliper. Basically vernier means an instrument which is used to measure the length, and the caliper means small measuring length. So in ancient times, in ancient China के अंदर बहुत अरसा पहले a caliper was bought without the beginning of scale as Qin Dynasty AD 9, and so in 1631 के अंदर अबाउट 300 अगो पहले, बहुत सा पहले, अ फ्रेंच साइंटिस्ट which name Vernier has introduced a device which obtain to an accurate measurements for required, जो कि required things किस उनको scientific experiments के लिए and for साइंटिफिक लैब्स के लिए। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज दैट द टू स्केल्स और डिविजन्स और डिफरेंट इन साइजेस आर यूज्ड। द डिफरेंस बिटवीन देम इज यूज्ड टू एनहांस द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। एंड थर्ड वन इज what is the uses of vernier caliper? The main use of vernier caliper is to determine the external and the internal diameter of the sphere or a cylinder. And the fourth one is what is the construction of vernier caliper? सबसे पहले हम इसके parts देखते हैं। We said I told some parts. Number 1 is main scale, and number 2 is vernier scale, number 3 fixed jaws, and number 4 outer jaws or movable jaws, and number 5 locking keys, and number 6 thumb keys, and number 7 depth rod. We will describe and we will discuss in detail. First of all we discuss main scale. Basically main scale is the long rectangular metal strip which has a fixed jaws at its one end, and it is graduated in inches at its upper end and in centimeters at its lower end, and which is called main scale. And this other is, and the second one is what is vernier caliper and what is vernier scale. Vernier scale को हम डिस्कस करते हैं। the mobile rectangular strip which is graduated with a special relation to that of the main scale which is called the vernier scale, and which is slide on the main scale and has a same jaws as a main scale. And then we can say that these two jaws hold any object, any body firmly while measuring its diameter, and this cannot be happened with the help of meter rule. And the third one is these are the external jaws. These are called the external jaws, which is generally used to measure the external diameter of the sphere or cylinder, and these are called the internal jaws, which is generally used to determine the internal diameter of the sphere or cylinder, and which is extended in one side. Basically जो हमारे पास एक्सटर्नल जॉज होते हैं वो एक्सटेंडेड करते हैं इन वन साइड, एंड दिस इज वी कॉल्ड इज इंटरनल जॉज। इसके बाद लास्ट वन हम देखते हैं व्हाट इज डेप्थ रॉड। डेप्थ रॉड क्या है?
The depth rod, the long metal strip, is placed at the back of the vernier caliper and which is used, इसको यूज किया जाता है to measure करने के लिए, to measure for depth of the sphere or cylinder. And the last one is, what is the least count of the vernier caliper? The difference between the one main scale and one vernier scale division is called least count. And each, और यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है क्या, वो है जी 0.1 मिलीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में देखते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर। और अगर हम इसका फार्मूला देखते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? सो इज स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, 1 मिलीमीटर ओवर 100 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर ओवर 10 मिलीमीटर। सो अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास 0.1 मिलीमीटर, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में करते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर में आता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ईच मेन स्केल डिवाइडेड इनटू दी 10 डिविजन्स एंड ईच डिविजन्स कंटेन, और वो कंटेन करती है 0.9 मिलीमीटर। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वर्नियर कैलिपर। तो आज हम देखेंगे ये कैसे वर्किंग करता है, ये काम कैसे करता है। सो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दी जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर को हम फाइंड करेंगे, जीरो एरर। सो उसके बाद हम जीरो करेक्शन को फाइंड करेंगे। ठीक है क्लास, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम जीरो एरर को कैसे फाइंड करेंगे और इसका मेथड क्या है। सबसे पहले क्लास हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो जार्स हैं, फिक्स और आउटर जार, ये जो हमारे पास फिक्स जार है, हम इनको क्या करेंगे, हम इनको कंबाइन कर देंगे जेंटली। सो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो लाइंस होंगे उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि जीरो एरर प्रोड्यूस होता है या नहीं होता। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी, हम देखते हैं कि एरर जो है, जीरो एरर, ये प्रोड्यूस कैसे होता है। सो क्लास, इफ अगर द जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विद द जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल, देन जीरो एरर इज नॉट प्रोड्यूस। लाइक हम कह सकते हैं कि जीरो एरर हमारे पास क्या होगा, जीरो। इफ अगर दी जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कंसाइडिंग विद द जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल, देन दी जीरो एरर इज प्रोड्यूस। अगर जीरो एरर अब प्रोड्यूस हो गया, इफ जीरो एरर इज प्रोड्यूस इन एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, देन वी कैन से दैट दी जीरो एरर ऑफ दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो इसके बाद हम देखते हैं कि जीरो करेक्शन क्या है। तो जीरो करेक्शन को स्टडी करने के लिए बेसिकली जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। ठीक है जी, नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। सो ये यूज किसके लिए होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिकली ये यूज होता है करेक्शन के लिए। ठीक है, सो हम वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर knowing the zero error, some correction can be made by correct the measurements, that is called zero correction. So ये बेसिकली क्या है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ऑफ जीरो एरर। उसके बाद जीरो एरर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, हमने देख लिया कि जीरो एरर प्रोड्यूस कब होता है। ठीक है, अगर प्रोड्यूस नहीं होता तो जीरो है, तो फिर कब होता है, हमने जीरो करेक्शन को देख लिया। फिर अब हम देखेंगे कि जीरो एरर पॉजिटिव कब होता है और जीरो एरर नेगेटिव कब होता है। प्लस हमारे पास दो टर्म्स आ गई, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव क्लास, हम देखते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर क्या है और पॉजिटिव क्या है। क्लास, सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। इफ अगर दी जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल इज right side of the zero line of the vernier scale, then we can say that the zero error is positive. If agar the zero line of the vernier scale is left side of the zero line of the main scale, then we can say that the zero error is negative. So class, I hope you will understand this lecture. So हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये सारे दो नंबर्स के यहाँ पे
अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ तैयब, आई एम हेयर टू टीच फिजिक्स। सो क्लास, हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था जी व्हाट इज वर्नियर कैलिपर। सो क्लास, आज हम देखेंगे हाउ वी कैन टेकिंग द रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर। सो क्लास, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है इसको सबसे पहले हम मेजर करेंगे थ्रू किसके, वर्नियर कैलिपर के। फर्स्ट स्टेप इज हम क्या करेंगे, मेजर लेंथ या हम कह सकते हैं जी डायमीटर, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट थ्रू वर्नियर कैलिपर। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकंड क्या है जी, हमने अब सेकंड पे अब देखना, फर्स्ट तो देखना ही है, अब हमने इसको सेकंड पे प्लेस कर देना है। ठीक है, ऑन वर्नियर कैलिपर सेकंड हमने प्लेस कर दिया। देन अब हम क्या करेंगे, वी प्रेस बोथ जॉज, यहाँ तक कि जो इसके ऑपोजिट एंड्स हैं, इसकी जो ऑपोजिट स्लाइड्स हैं वो एक दूसरे को फुल प्रेस कर देना हमने। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करें। ठीक है क्लास, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या लेना है, हमने कंप्लीट रीडिंग लेनी है जी, डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कंप्लीट। यहाँ पे पैकेट जो हमारे पास था जी, हमने क्या करना है, हमने इसका डायमीटर, उसके बाद हमने प्रेस कर देना है इसको, प्रेस बोथ साइड्स। ठीक है जी, ऑफ जॉज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमने क्या करना है, हमने लेनी है वी सी द कंप्लीट डिविजन्स ऑफ मेन स्केल पास द डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। सो क्लास, हमने ये वाली सारी जो रीडिंग है मेन स्केल की हम वो लेंगे। ठीक है, जो कि पीछे है, जो कि पास है किसके, वर्नियर स्केल के। ठीक है, हम इधर लिख सकते हैं पास वर्नियर स्केल। सो क्लास, नेक्स्ट जो स्टेप है, हम क्या करेंगे, हमने इसके बाद हम देखेंगे कौन सी लाइन जो है, कौन सी लाइन ऑफ वर्नियर स्केल की, कौन सी लाइन वर्नियर स्केल, हम देखेंगे वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के सामने आती है। ठीक है, हमने देखना है, लाइक हम कह सकते हैं कि हमने देखना है वो इसी कौन सी लाइन जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल मेन जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास रीडिंग आएगी हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो रीडिंग आएगी हमारे पास, हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है जी लीस्ट काउंट से, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट प्लस मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, ये इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, हमने इस प्रोसेस को 2 से 3 मरतबा करना है, इस ऑब्जर्वेशन को 2 से 3 मरतबा करना है और ऑब्जेक्ट को यहाँ रोटेट करना है। ठीक है, थ्रू डिफरेंट एंगल्स। ओके, सो इस तरह हम ये हमने आज जाना कि हम किस तरह वर्नियर कैलिपर से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ लाइक या डायमीटर हम कह सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप था वो हमने क्या किया, सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर फाइंड किया था। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनको प्रेस बोथ साइड्स ऑफ जॉज को प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कि ये दोनों जो जॉज हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करें। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कंप्लीट डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल पॉजिटिव वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि कौन सी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज तैयब, आई एम हियर हाउ वी कैन टेकिंग द measurements, how we can taking the reading of the वर्नियर कैलिपर्स। सो क्लास, सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है, इसके लिए हम चेक करेंगे आले के अंदर कोई जीरो एरर तो नहीं है। ठीक है, अगर तो जीरो एरर नहीं है देन वी स्टार्ट, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1। वो क्या है जी, हम देखेंगे सबसे पहले डायमीटर ऑफ दी, हम इसका डायमीटर फाइंड करेंगे, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रू
वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट हमने इन दोनों जॉस को इतना प्रेस करेंगे यहाँ तक कि ये दोनों जॉस की जो स्लाइड्स हैं, जो साइड्स हैं, वो इस ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह कोलाइड करें कि ये फुल प्रेस हो जाए, फुल इसके अंदर कोई डिफरेंस ना रहे। ठीक है क्लास। सो इससे नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे पास थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप के अंदर हम मेन स्केल की जो हमारे पास डिवीजन्स होंगी, वी कैन टेक हम लेंगे मेन स्केल डिवीजन्स पास्ट दी वर्नियर स्केल डिवीजन्स। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से कहाँ पे कोइंसाइड कर रही है, या हम देखेंगे वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो जब हम ये देखेंगे इसके बाद जो हमारे पास रीडिंग आएगी हम उसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसके हम अंदर ऐड कर देंगे जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग होगी। सो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस प्रोसेस को 3 से 4 मरतबा दोहराना है। लाइक हमने इस ऑब्जर्वेशन को 3 to 4 जो है ना करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन हमने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है थ्रू द डिफरेंट एंगल्स। सो अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज तैयब, आई एम हियर टू टीच फिजिक्स। सो क्लास हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का टॉपिक वर्नियर कैलिपर डिस्कस किया था। तो आज हम उसकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमने देखा था उसके अंदर कि हाउ वी कैन टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। उसके मैंने आपको चंद स्टेप्स बताए थे। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि हमने डायमीटर को मेजर करना था थ्रू दी वर्नियर कैलिपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने उसकी अपोजिट साइड्स को जो जॉज हैं इस तरह जो है ना उसको प्रेस करना था कि वो दोनों आपस में कोलाइड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद कि जो मेन स्केल की जो रीडिंग है पास दी वर्नियर स्केल उसको हम मेजर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो मेन स्केल की कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की जीरो लाइन से कोइंसाइड करती है। नेक्स्ट फिर जब हमारे पास ये रीडिंग आ जाएगी हम उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम उसको मेन स्केल की रीडिंग उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहले हमने जीरो एरर लिया। जीरो एरर हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग 0.0 लाइक उसकी 0.0 रीडिंग आ गई सेंटीमीटर में। उसके बाद हमने देखा कि वर्नियर डिवीजन विद मेन स्केल, यानी कि जो मेन स्केल की रीडिंग है पास दी वर्नियर स्केल वो हमें 7 डिवीजन आ गई। उसके बाद हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट की तो हमारे पास हमने इस डिवीजन को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.07 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हम देखेंगे इस एरर को जब देखेंगे तो वो मेन स्केल की रीडिंग जब देखेंगे तो 0.07 सेंटीमीटर। जीरो करेक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। सो वी कैन से दैट एंड वी कैन सी दैट। सो उसके बाद हम देखते हैं कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन, ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड किया था। उसके बाद जो मेन स्केल रीडिंग है जो उस डायमीटर है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद हमने उसकी मेन स्केल रीडिंग ली तो वो हमारे पास आ गई 2.2 सेंटीमीटर। देन हमारे पास जो उसकी मेन स्केल की जो डिविजन्स आई पास दी वर्नियर स्केल वो क्या आ गई 6। और उसके बाद जो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग आई हमने इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया। देन मैंने आपको कहा था कि हम इसको 2 से 3 बार ऑब्जर्व करेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रोटेट करेंगे। सो उसके बाद हमारे पास ये सिलेंडर की डायमीटर आ गया। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम इसमें से माइनस कर देंगे जीरो एरर को। तो जीरो एरर हम पहले निकाल चुके हैं -0.07, तो हम इसको निकाल देंगे तो 2.19 सेंटीमीटर हमारे पास करेक्ट डायमीटर आ जाएगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।